हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ कंट्री वेयर यू वुड लाइक टू वर्क फॉर अ शॉर्ट टाइम। अंदर के बुलेट्स हैं वेयर वुड यू लाइक टू वर्क, व्हाट काइंड ऑफ जॉब वुड यू लाइक टू डू, व्हेन वुड यू लाइक टू गो देयर, एंड लास्ट वन, व्हाई वुड यू लाइक टू वर्क देयर फॉर अ शॉर्ट टाइम। अब पहले इसका मीनिंग समझेंगे। ऐसे कोई देश के बारे में बताइए जहाँ पे आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम करना चाहते हैं, यानी जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, और आप कौन से देश में जाना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, यानी आपको आपका जॉब को डिस्क्राइब करना है, और आप वहाँ पे कब जाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं। अब इस क्यू कार्ड के लिए मेरी आपको एक गोल्डन पीस ऑफ एडवाइस है। बहुत सारी बार हमें गलती कर बैठे हैं कि जब हमें पूछा जाता है कि हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कहाँ पे घूमने जाना चाहते हैं या पढ़ाई करने जाना चाहते हैं या फिर काम करने जाना चाहते हैं, तब हम उस कंट्री का नाम ले बैठते हैं जहाँ पे हम एक्चुअली जाने के लिए आइल्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा हो सकता है, यूएस हो सकता है, यूके और कोई भी अदर यूरोपियन कंट्री हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एनी अदर कंट्री। मेरी आपसे एडवाइस है दैट जब आपको ऐसा पूछा जाए दैट व्हेन यू वांट टू गो फॉर अ शॉर्ट टाइम फॉर एनीथिंग, फॉर वर्क और फॉर स्टडी or for a holiday, do not tell the name of the country where you wish to settle। यानी जिस कंट्री के लिए आप आइल्स के एग्जाम दे रहे हो उस कंट्री का नाम आपको यहाँ पे नहीं बोलना है, क्योंकि वहाँ पे आप परमानेंटली जाना चाहते हैं। आपको कोई ऐसी कंट्री की बात करनी है जहाँ पे आप सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जाना चाहते हैं। जब आपको क्यू कार्ड के बारे में बोलने से पहले थोड़ा सा थिंकिंग टाइम दिया जाएगा, तब आप जल्दी से पेपर पे ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं। कहाँ पे काम करना चाहते हैं तो आप कंट्री का नाम लिख सकते हैं, फिनलैंड। किस प्रकार की जॉब करना चाहते हैं, टीचर की। कब जाना चाहते हैं में आप समर लिख सकते हैं, महीनों के नाम भी लिख सकते हैं। और क्यों जाना चाहते हैं में आप 2-3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखे हैं बेस्ट एजुकेशनल सिस्टम, हैप्पीएस्ट कंट्री और पिक्चरस्क ब्यूटी। चलिए अब इस क्यू कार्ड को बोल के देखते हैं। I have never thought about this because whenever we think of doing a job or working, we tend to think of permanence. We hardly think of working somewhere for a short time. However, this is really a very thought-provoking question. So the country where I would like to visit and work for a short time is, I would say, Finland. Finland is a European country and it is located on the northern side of Europe, besides Sweden and Norway. I would like to visit Finland in the season of summers, around the month of May to July, and because it is an extremely cold country, so around summers the climate would be the warmest and the days would be the longest, and also the tourist facilities would be at its peak. So I believe that summer time would be the best time to visit Finland. I would like to do the job of a teacher in Finland, at least for a period of 2 to 3 weeks. I would love to teach anything that I'm good at, may it be a subject or a skill. Why I want to be a teacher in Finland is because once I had read in a magazine about the educational system of Finland and I was really very impressed with it. I feel that gaining a teaching experience or doing the job of a teacher in Finland would give me a very enriching and a very powerful experience and a very meaningful experience of my life. If I talk about the educational system of Finland, Finland believes in pressure-free education. They believe in cooperation and not competition. All the children are treated equally and given individual guidance by the teachers. Finland also believes, or the educational system of Finland also believes in making the academic foundation of all the students strong by teaching them the basic concepts. What more can a student ask for? Some of the other interesting reasons why I would like to work in Finland for a short time is that Finland is one of the happiest countries of the world, and it is well known and very popular for its stunning and picturesque Lapland and the Northern Lights. Finland is also believed to be the home of Santa Claus. Well, I would like to go there only for a short time and not permanently because of 2 reasons more. That Finland is a very, very cold country and it is an expensive country as well. So I wouldn't want to settle there but want to just go there for a short time. चलिए अब इस क्यू कार्ड को लिख के समझेंगे। I have never thought about this because mostly when we think of work, we think of permanence. We hardly think of working somewhere for a short time. This is really a thought-provoking
क्वेश्चन। मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है, क्योंकि जब हम काम के बारे में सोचते हैं तब हम स्थायी काम के बारे में सोचते हैं या तो फिर स्थिरता से रिलेटेड कोई जॉब के बारे में सोचते हैं। हम बहुत कम बार थोड़े समय के लिए जॉब के बारे में सोचते हैं। ये बहुत ही विचार प्रेरक प्रश्न है। I guess the country where I would like to work for a short time is Finland. Finland is a European country located in the northern part of Europe near Sweden and Norway. मैं जो देश में थोड़े समय के लिए काम करना चाहता हूँ वो फिनलैंड है, जो एक यूरोपियन कंट्री है और यूरोप के उत्तरी भाग में है। इस कंट्री के बाजू में स्वीडन और नॉर्वे जैसी कंट्रीज है। I would like to go there during the summer around the months of May to July. मैं यहाँ पे गर्मियों की ऋतु में जाना चाहूँगा, खास करके मई और जुलाई के महीनों में। As it is an extremely cold country, summer would be the best time to visit. Climate in summer would be the warmest and days would be the longest. The tourist facilities would also be at its peak. क्योंकि ये बहुत ही ठंडा देश है, इसीलिए गर्मियों की जो ऋतु है वो इस देश को विज़िट करने का सबसे श्रेष्ठ समय रहेगा, क्योंकि गर्मियों में जो दिन है वो सबसे लंबे होंगे और सबसे गर्म भी होंगे। इसके अलावा जो टूरिज़्म की सुविधाएं होगी वो भी ये प्राइम टाइम में श्रेष्ठ होगी। I would like to do the job of a teacher in Finland. I would be happy to teach anything in school at least for 2 to 3 weeks, whatever I may be good at, a subject or a skill. मैं फिनलैंड में टीचर यानी कि शिक्षक की जॉब करना चाहूँगा और मैं वहाँ पे 2 से 3 हफ्तों के लिए कुछ भी पढ़ाने में खुश हो जाऊँगा। फिर वो कोई विषय भी हो सकता है या तो कोई कौशल्य भी हो सकता है। Why I would like to work there is because once I had read about the educational system of Finland and I was very impressed with it. मैं वहाँ पे इसलिए काम करना चाहूँगा क्योंकि एक बार मैंने कहीं पे पढ़ा था फिनलैंड की शैक्षणिक प्रणाली के बारे में, और मैंने पढ़ा था कि वो जो शैक्षणिक प्रणाली है वो श्रेष्ठ है और मैं बहुत ही प्रभावित हो गया। I felt that the experience of teaching in Finnish schools would be really meaningful and enriching even if it is for a very shorter duration. मुझे लगता है कि जब ये फिनिश यानी फिनलैंड की स्कूल्स, जैसे हम इंडिया में इंडियन स्कूल्स कहते हैं वैसे फिनलैंड की स्कूल्स को फिनिश स्कूल्स कहा जाता है, अगर मुझे वहाँ पे पढ़ाने का अनुभव मिल जाए तो ये बहुत ही उम्दा और अर्थपूर्ण अनुभव रहेगा, फिर भले ही ये थोड़े समय के लिए है। फिनलैंड बिलीव्स इन प्रेशर फ्री लर्निंग। फिनलैंड जो है वो तनाव मुक्त शिक्षण में बिलीव करता है और furthermore the education system firmly believes in making the academic foundation strong by teaching the basics. इसके अलावा वहाँ की जो शैक्षणिक प्रणाली है वो जो शिक्षण का जो बुनियाद है उसे स्ट्रॉन्ग बनाने में मानती है, किससे? बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा के। All the children are treated equally and they receive individual guidance from the टीचर्स। सारे विद्यार्थियों को एक समान ट्रीटमेंट दी जाती है और टीचर्स से उन्हें व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिलता है। What more can a student ask for? एक विद्यार्थी और क्या मांग सकता है? Some other interesting reasons to work temporarily in Finland is that it is the happiest country of the world. कुछ और बहुत रसप्रद कारण है कि मैं फिनलैंड में क्यों थोड़े समय के लिए काम करना चाहूँगा। उसमें से एक है कि फिनलैंड पूरे विश्व में सबसे खुश देश है, हैप्पीएस्ट कंट्री है। It is famous for its stunning and picturesque Lapland, the northern lights, and it is also believed to be the home for Santa Claus. ये आंखों को चौंका दे इतना सुंदर देश है। वहाँ पे लैपलैंड और नॉर्दर्न लाइट्स की जो ब्यूटी है वो बिल्कुल ही देखने लायक है और ऐसा भी माना जाता है कि फिनलैंड जो है वो सांता क्लॉज का घर है। It is an expensive country and a very cold country, so I do not wish to go there permanently, but only go and work there for a short time. ये बहुत ही महंगा देश है और बेहद ठंडा देश है, इसलिए मैं वहाँ पे परमानेंटली हमेशा के लिए सेटल होना नहीं चाहूँगा, लेकिन फिर सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ पे जाके जॉब का अनुभव करना चाहूँगा। अगर आपको इस क्यू कार्ड के वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स या फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और क्यू कार्ड पे वीडियो बनाऊं या फिर आपको कोई और क्वेश्चंस हैं, फिर भी आप अपनी कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलो अप क्वेश्चंस हैं
उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है और आप यहाँ पे भी उसकी लिंक देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।